اللہ کا خوف عارف, میں تیری نئی امی ہوں, تیرے ابو کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا؟ چھوڑیے مولانا صاحب, میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں. یہ کہانی ہے بنگال کے مالدہ کھیتر میں بسے ایک چھوٹے سے شہر کی. مالدہ جہاں تنگ گلیاں, پرانے پکے مکان, سڑکوں پر پھول, ہر موڑ پر چائے کی دکان, اور شام ہوتے ہی مسجد کی اذان کی آواز پورے علاقے میں گونج جاتی تھی. اسی شہر کے ایک تنگ سے محلے میں گھر تھا عبد الرحمن کا. عبد الرحمن جس کی عمر قریب 50 سال تھی, اس کی بیوی تھی سلیمہ. ان کی 2 بیٹیاں تھیں. بڑی بیٹی ریحانہ جو 22 سال کی تھی, وہ بڑی سمجھدار تھی. وہیں چھوٹی بیٹی نازیہ تھی جو قریب 20 سال کی تھی. وہ دل سے, بچی اور شریر سے بڑی ہو چکی تھی. دونوں بہنوں کا بچپن گھر میں ہی بیتا. انہوں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا, لیکن نازیہ جب بھی پڑوس کی لڑکیوں کو اسکول جاتے دیکھتی, اس کے قدم دروازے تک چلے جاتے. دروازے پر کھڑے ہو کر وہ سوچتی اور خود سے کہتی کہ کاش میں بھی پڑھ پاتی, لیکن غریبی نے اس کے سپنوں پر تالا لگا رکھا تھا. لیکن ایک دن کی بات ہے, عبد الرحمن اپنے کام سے لوٹ رہا تھا. تبھی راستے میں اس نے دیکھا کہ محلے میں نیا مدرسہ کھل گیا ہے جہاں بچیوں کو مفت تعلیم دی جائے گی. یہ دیکھ کر وہ تھوڑا خوش ہوا. اس نے گھر آ کر باتوں ہی باتوں میں سلیمہ کو مدرسے کے بارے میں بتایا. یہ سن نازیہ جیسے بجلی سی دوڑی گھر میں. وہ آئی اور بولی, امی میں بھی جاؤں گی. اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. سلیمہ نے پہلے اس کے ابو کی طرف دیکھا, جس پر عبد الرحمن نے لمبی سانس لی اور کہا, ٹھیک ہے چلی جانا, کم سے کم دین کا علم تو سیکھ لے گی. یہ سنتے ہی نازیہ کے چہرے پر جو خوشی آئی وہ کسی بچے کو عید پر نیا کھلونا ملنے جیسی تھی. جس کے بعد دوسرے دن صبح اس نے بال کس کر باندھے, سفید کرتی اور سفید سلوار پہن کر مدرسے کے لیے نکل گئی. اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا. مدرسے میں قدم رکھتے ہی ہلکی سی خوشبو آئی, عطر اور پرانی کتابوں کی. مدرسے میں نیچے فرش پر چٹائی بچھی تھی. بچے گول گھیرا بنا کر بیٹھے تھے اور سامنے بیٹھا تھا مولانا زبیر. موٹی داڑھی, گول چہرہ, پیٹ نکلا ہوا اور ہاتھ میں تسبیح. لیکن اس کی وہ آنکھیں عجیب تھیں, جیسے ہر کسی کو تول رہی ہوں. اس نے نازیہ کو دیکھا اور کہا, آؤ بیٹی, نام کیا ہے تمہارا؟ نازیہ بولی, میرا نام نازیہ ہے. مولانا بولا, ماشاء اللہ, بہت پیارا نام ہے, آؤ بیٹھو. ایسے کر کے نازیہ کا مدرسے میں داخلہ ہوا. اب شروعات کے دن سب ٹھیک رہے. وہ گھر آ کر امی کو آیتیں سناتی. دیکھو امی, میں نے یاد کر لی. اس کی امی کو اچھا لگتا, وہ گرو سے مسکرا دیتی. ایسے کر کے قریب 4-5 مہینے سب ٹھیک چلتا رہا. لیکن کچھ مہینے بعد بدلاؤ شروع ہوا, کیونکہ جب مدرسے میں سب پڑھتے تو مولانا کی نظریں صرف نازیہ پر ٹک جاتیں. وہ چپ چاپ اسے گھورتا رہتا, جس سے نازیہ کو عجیب لگتا. مولانا باتوں ہی باتوں کبھی نازیہ کا دوپٹہ کھینچ لیتا, کبھی اس کے گالوں کو چھوتا اور کہتا, نازیہ تم ادھر آؤ, پاس بیٹھو. نازیہ جی کہہ کر اس کے پاس بیٹھ جاتی, اتنے پاس کہ اس کی سانس اس کے گال سے ٹکراتی. پڑھائی کے دوران مولانا نازیہ کا ہاتھ پکڑ لیتا. نازیہ دھیرے سے ہاتھ کھینچ لیتی تو مولانا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا. ایسے کر کے مولانا اس کے ساتھ گندی حرکت کرنے لگا تھا, جس سے نازیہ اسہج محسوس کرنے لگی تھی. لیکن اسی بیچ آیا وہ منحوس دن. اس دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی, جس سے باقی بچے جلدی گھر چلے گئے. لیکن مولانا نے نازیہ کو یہ کہتے ہوئے روک لیا, ابھی بہت پانی گر رہا تھا, تم رک جاؤ کیونکہ تمہیں خاص سبق دینا ہے. نازیہ رک گئی. کمرہ بالکل خالی تھا اور اندر سناٹا تھا. نازیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. اتنے میں مولانا اٹھ کر دروازہ بند کر دیتا ہے. نازیہ سہم گئی. تب مولانا اس کے پاس آ کر بولا, ڈر کیوں رہی ہو, میں تمہارا استاد ہوں. وہ نازیہ کے سامنے اس کے قریب بیٹھا اور اس نے نازیہ کا ہاتھ پکڑ لیا. نازیہ کانپنے لگی. وہ بولی, مجھے گھر جانا ہے. مولانا بولا, چپ رہو, بارش ہو رہی ہے, ایسے میں کیسے جاؤ گی؟ اتنا کہہ کر مولانا اس کے قریب آیا اور کہا, ایک خاص علم سکھا رہا ہوں تمہیں, لیکن تم وعدہ کرو کہ کسی سے کچھ نہیں کہو گی. نازیہ ڈرتے ہوئے بولی, نہیں کہوں گی. مولانا نے کہا, سوچ لینا, اگر کسی کو بتایا تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور فرشتے تم پر لعنت بھیجیں گے. اس کی بات سن کر نازیہ اور ڈر گئی. اس نے حامی بھری اور چپ چاپ بیٹھی رہی. مولانا نے دھیرے سے اس کا دوپٹہ پکڑا اور کھینچ کے پھینک دیا اور اسے چومنا شروع کر دیا. نازیہ کو عجیب لگ رہا تھا, لیکن ڈر کے مارے وہ چپ رہی. تھوڑی دیر چومنے کے بعد مولانا نے اسے چٹائی پر لٹایا اور اس کے ساتھ وہ گندا کرتیہ کی شروع کر دیا. نازیہ چیختی رہی, روتی رہی, لیکن اس بیچ مولانا اسے ڈراتا رہا, دھمکاتا رہا. قریب 1 گھنٹہ تک غلط کام کرنے کے بعد کہا, واہ, آج تو نے مجھے خوش کر دیا, اب تو گھر جا سکتی ہے. لیکن یاد رہے, گھر پر کسی کو کچھ نہیں بتانا, ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. نازیہ کانپتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچی. اس کا دوپٹہ بکھرا ہوا, بال بکھرے تھے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں.
जब नाजिया घर पहुंची तो सलीमा ने पूछा, बेटी क्या हुआ? नाजिया कांपने लगी। उसका शरीर गर्म पड़ रहा था, लेकिन सलीमा ये सब समझ नहीं पाई। उसे लगा शायद नाजिया की तबीयत खराब है। उसने नाजिया को सोने के लिए कह दिया। अब नाजिया बिस्तर पर जाकर सो गई। उसके दिमाग में मौलाना के कहे गए एक एक शब्द गूंज रहे थे और दर्द से उसका शरीर कहार रहा था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। अगले दिन जब अम्मी ने फिर पूछा, बेटी आज नहीं जाओगी? नाजिया धीमी आवाज में बोली, नहीं अम्मी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे करके नाजिया कुछ दिन मदरसे में नहीं गई, जिसके चलते मौलाना सोच में पड़ गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं नाजिया ने घर वालों को बता तो नहीं दिया। इसलिए एक दिन सुबह सुबह मौलाना नाजिया के घर जा पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक ठक। सलीमा ने दरवाजे की कुंडी खोली तो सामने मौलाना जुबैर खड़ा था। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम। उसे देख नाजिया का अब्बू तुरंत सम्मान से खड़ा हो गया। उसने भी कहा, वालेकुम सलाम मौलाना साहब, आइए आइए। नाजिया अंदर कमरे में थी। जैसे ही आवाज सुनी उसका शरीर कांप गया, हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। मौलाना आराम से चारपाई पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बोला, भाई आपकी बेटी कई दिन से मदरसे नहीं आ रही, उसे इल्म से दूर रखना ठीक नहीं। नाजिया का अब्बू शर्मिंदा सा बोला, जी उसकी तबीयत खराब थी शायद। मौलाना बोला, अच्छा मुझे लगा ऐसा क्या हो गया कि बच्ची आई नहीं, इसलिए मैं खुद लेने आया हूँ। नाजिया दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसके पैरों में जान नहीं थी। अब्दुल रहमान ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर उसने नाजिया को आवाज लगाई, लेकिन नाजिया नहीं आई। तब उसकी अम्मी कमरे में उसे लेने गई। उसने कहा, नाजिया चल मौलाना साहब तुझे लेने आए हैं। नाजिया बोली, अम्मी मत भेजो, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन सलीमा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल बेटे, मौलाना साहब खुद आए हैं, ऐसे बदतमीजी मत करो। इतना कहकर हाथ पकड़ के वो नाजिया को बाहर ले आई। नाजिया डरी हुई थी। मौलाना उसे देखकर बोला, नाजिया क्या बात है? नाजिया ने कुछ नहीं कहा तो मौलाना ने कहा, अब चलें पढ़ाई करने। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ। वो बाहर आने लगा। नाजिया चुपचाप मौलाना के पीछे पीछे चल पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे कसाई के पास धकेला जा रहा हो। मदरसे जाते वक्त हर कदम भारी था, हर सांस डर से भरी। वो बार बार पीछे देखती, काश कोई रोक ले, काश कोई कह दे मत जाओ, लेकिन कोई नहीं आया। मौलाना उसे देखते ही मुस्कुराया। वो मुस्कान किसी दरिंदे जैसी थी। उसने कहा, आ गई मेरी बच्ची। उसके शब्दों में अजीब सा मालिकाना हक था। मदरसे में ले जाने के बाद जब सभी बच्चे चले गए तो मौलाना ने उस पर चिल्लाया कि नाजिया ये क्या बदतमीजी है, ऐसे नहीं करते वरना अल्लाह बुरा मान जाएगा। नाजिया चुप रही, जिसके बाद मौलाना ने उसके साथ फिर से सब कुछ किया। नाजिया अब पूरी तरह टूट चुकी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिस्म का भूखा भेड़िया उसके शरीर को लोंच रहा हो। लेकिन उसने फैसला किया कि वो अम्मी अब्बू को सब बताएगी। जिसके बाद जैसे ही नाजिया लड़खड़ाते हुए घर पहुंची तो वो सीधे अम्मी के पैरों में गिर गई और बोली, अम्मी वो बुरा आदमी है, मेरे साथ गंदा करता है, मैं अब नहीं जाऊंगी। इतना कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतना सुनते ही उसके अब्बू ने जोर थप्पड़ मारा चटाक और कहा, चुप रह, ये तू क्या बोल रही है? सलीमा ने नाजिया से पूछा कि बेटी क्या हुआ, जिस पर नाजिया ने पूरी बात अब्बू अम्मी को बताई। लेकिन सब कुछ समझते हुए भी उसके अब्बू ने उसकी एक ना सुनी और बोला, बिल्कुल चुप, बदनाम करेगी घर को, वो बड़े आदमी हैं और तू मौलाना पर इल्जाम लगाएगी? शर्म कर, क्यों झूठ बोल रही है? ये शब्द नाजिया को तीर की तरह लगे। वो जमीन पर गिर गई। तब सलीमा ने कहा, जी उसकी बात तो सुन लो। लेकिन रहमान ने कहा, तुम सब पागल हो गई हो क्या? वो पूरे इलाके के इज्जतदार आदमी हैं, वो भला ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर वो वहां से चला गया और नाजिया का दिल वहीं टूट गया। वो कोने में बैठ गई, घुटनों में चेहरा छुपाकर बस रोती रही। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। सुबह अजान हुई, अल्लाहु अकबर, लेकिन आज नाजिया उठी नहीं। तब उसकी बहन रिहाना ने धीरे से उसका कंधा हिलाया। नाजिया आज नमाज नहीं पढ़ेगी? नाजिया ने धीरे से आंखें खोलीं और घर की छत देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा, दीदी अल्लाह मुझे देखता क्यों नहीं? इस पर रिहाना चुप हो गई। सलीमा समझ चुकी थी कि पक्का नाजिया के साथ गलत हुआ है। उसने नमाज के बाद रहमान से कहा, सुनिए ज़रूर कुछ हुआ है, क्योंकि नाजिया पहले ऐसी नहीं थी। जिस पर रहमान चिढ़कर बोला, तू हर बात में शक मत कर, वो बच्ची है, अभी कुछ नहीं जानती और उनको दिमाग ज्यादा चलाने की आदत होती है। लेकिन सलीमा ने उसे समझाया तो रहमान ने कहा, तुम समझने की कोशिश करो मौलाना साहब, पर इल्ज़ाम लगाना मतलब खुदा की इल्म पर इल्ज़ाम लगाना होगा। अब कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे, जिसके बाद
फिर एक दिन सुबह सुबह मौलाना जुबैर नाजिया के घर आया। उसे देखते ही नाजिया बोली, अब क्यों आए हो यहाँ? अब क्या चाहिए तुम्हें? जिस पर उसके अब्बू ने उसे डांटा और कहा कि चुप कर, कैसे बात कर रही है तू? नाजिया रोते हुए अंदर चली गई। जिसके बाद रहमान ने मौलाना को खाट पर बैठाया और बोला, अगर बच्ची ने कुछ गलत कह दिया हो तो माफ कर दीजिए। मौलाना ने नाटक करते हुए कहा, अरे भाई कोई बात नहीं, बच्ची है, लेकिन इसे हुआ क्या है? मौलाना के इतना कहते ही नाजिया की बड़ी बहन वहां आई और बोली, आप कहते हैं हुआ क्या है? ये तो आप ही बताइए कि आपने उसके साथ क्या किया है। ये सुनते ही मौलाना का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, ये क्या बोल रही हो तुम? इतने में उसकी अम्मी आई और रिहाना का मुंह पकड़ के उसे अंदर ले गई। तब मौलाना ने कहा, क्या बात है रहमान भाई, मैं तो हैरान हूँ कि नाजिया ऐसा क्यों कर रही है। जिस पर रहमान ने कहा, बच्ची है, माफ कर दीजिए। तो मौलाना ने पूछा, क्या बात है, साफ साफ बताओ। रहमान चुप हो गया, लेकिन मौलाना के बार बार पूछने पर रहमान ने सब बात दिया। जिसके बाद मौलाना ने कहा, बस बहुत हुआ, तुम पर अल्लाह की लानत है, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बातें करते हुए? इस पर रहमान हाथ जोड़कर मौलाना के पैरों में बैठकर माफी मांगने लगा। थोड़ी देर बाद मौलाना ने कहा, रहमान, ये सिर्फ मेरी बदनामी नहीं बल्कि तुम्हारी बच्ची की भी बदनामी है, और अगर तुम्हें इतना शक है तो एक रास्ता है। रहमान बोला, क्या मौलाना साहब? मौलाना ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी से निकाह कर लेता हूँ, फिर कोई इल्जाम नहीं रहेगा। ये सुन रहमान चौंका, लेकिन सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा आदमी अगर नाजिया से निकाह करेगा तो मेरी बेटी की किस्मत खुल जाएगी। मौलाना ने कहा, सोच क्या रहे हो रहमान? रहमान ने कहा, क्या आप सच में निकाह करने को तैयार हैं? मौलाना ने कहा, हाँ, अगर इससे मेरा इल्जाम हटता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर मौलाना वहां से चला गया। जिसके बाद घर में चर्चा हुई। सलीमा बोली, मौलाना है, दीनदार है और लड़की सुरक्षित रहेगी। लेकिन नाजिया चिल्लाई कि नहीं, मैं नहीं करूंगी निकाह, वो गंदा आदमी है। इस पर अब्बू गरजा और बोला, चुप कर, यहाँ हमारी इज्जत दांव पर है और तू नाटक कर रही है। नाजिया रोई और रहमान को समझाया कि नहीं अब्बू प्लीज, लेकिन रहमान ने उसकी एक ना सुनी और कहा, चुप, अब जो हम कहेंगे वही होगा। जिसके बाद उसने फैसला किया कि वो नाजिया का निकाह मौलाना के साथ कर देगा। जिसके कुछ दिन बाद निकाह का समय आया और घर में हल्की सजावट हुई। अम्मी अब्बू सब खुश थे, लेकिन नाजिया का चेहरा उतरा था। नाजिया सफ़ेद कपड़ों में बैठी थी, चेहरा बिना भाव के, आंखें सूखी। तभी काजी ने पूछा, कबूल है? वो चुप रही। तब उसके अब्बू ने उसका हाथ दबाया और धीरे से कहा, नाजिया बोलो। तब धीरे से टूटी आवाज़ निकली, कबूल है। उसका ये कहना ऐसा था जैसे किसी ने उसकी रूह को जिंदा दफना दिया हो। जिसके बाद निकाह हो गया और उसी पल उसकी आज़ादी ख़त्म हो गई। निकाह ख़त्म होते ही जैसे सब जल्दी जल्दी निपटा दिया गया। ना ढंग की दावत, ना हंसी, ना खुशी, बस कुछ लोग आए, दुआ पढ़ी, चले गए। आंगन में पड़ी कुर्सियां खाली हो गईं और घर फिर से सन्नाटे में डूब गया। लेकिन नाजिया की जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होने वाली थी। उधर एक पुराने से बड़े घर के सामने गाड़ी रुकी। थोड़ी देर में दरवाजे के अंदर से एक औरत निकली। सिर ढका हुआ, चेहरे पर सख्ती। वो थी मौलाना की पहली बीवी शबाना। उसने नाजिया को ऊपर से नीचे तक देखा जैसे कोई सामान खरीद कर लाया गया हो। उसने कहा, यही है नई बीवी? मौलाना बोला, हाँ। जिसके बाद उसे एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। अंदर एक लोहे का पलंग, पुराना गद्दा और दीवारों पर सीलन। शाम ढल गई, अंधेरा घिर आया। नाजिया पलंग के कोने में बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाकर, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर बाद रात हुई और दरवाजा धीरे से खुला। नाजिया की सांसें तेज चलने लगी। मौलाना अंदर आया। इत्रे की तेज खुशबू और आंखों में वही हवस। पास आकर उसने कहा, कितने नाटक किए तुमने, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो, समझी? उसकी आवाज से नाजिया पीछे सरक गई। मौलाना बोला, डर क्यों रही हो? शौहर से भला डरते हैं क्या? इतना कहकर वो उसके पास आया और बस फिर इसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उस रात नाजिया बहुत रोई, बार बार बोली, मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था, बस दीवारें गवाह थीं। यूं ही कुछ रात और दिन बीते और हर रात नाजिया की आत्मा उसका शरीर छोड़ रही थी। दिन में मौलाना लोगों के सामने बहुत नेक बनता, लोगों को नसीहत देता कि औरतों की इज्जत करो, अल्लाह से डरो। लोग कहते, वाह क्या पाक इंसान है कि मैं है। वहीं नाजिया दूर से ये सब सुनती तो उसके दिल में बस एक बात आती कि काश लोग असली चेहरा देख पाते। रात होते ही वही इंसान बदल जाता और उसकी चाल बदल जाती। रात होते ही नाजिया जैसे ही उसके कदमों की आहट सुनती, उसका गला सूख जाता, वो दीवार से चिपक जाती। उसका दिल कहता, आज नहीं, आज नहीं, लेकिन हर रात वही कहानी दोहराई जाती।
धीरे धीरे उसका रोना भी कम हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यहाँ आंसुओं की कोई कीमत नहीं। पहली बीवी शबाना को उससे कोई हमदर्दी नहीं थी, उल्टा वो उसे दुश्मन समझती थी। तेरी वजह से मेरा घर खराब हुआ, उसे अब भुगत। इन सब के बीच एक चेहरा था जो सब नोटिस कर रहा था। वो था आरिफ, नाजिया का सौतेला बेटा। एक दिन घर पर नाजिया और आरिफ ही थे। नाजिया किचन में काम कर रही थी, तभी आरिफ ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया। नाजिया बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? आरिफ बोला, वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। नाजिया बोली, छोड़ो मुझे। आरिफ ने कहा, ये बता, तूने मेरे बाप को कैसे फंसाया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तूने हमारा घर बर्बाद कर दिया। नाजिया पीछे हटने लगी और बोली, मुझे जाने दो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आरिफ ने कहा, अब कैसे जाने दूं? तूने ज्यादा जवानी चढ़ रही थी जो तूने मेरे बूढ़े बाप से निकाह किया। नाजिया बोली, मैंने नहीं किया। आरिफ ने पीछे से उसे मारते हुए उसके संग पकड़ लिया। नाजिया चीखी, जिसके बाद आरिफ ने नाजिया को मारा। नाजिया चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन आरिफ का गुस्सा उस पर ऐसे बरसा जैसे सारी गलती नाजिया की ही हो। आरिफ ने उसके साथ जबरदस्ती की और होड़ वहीं छोड़ के बाहर चला गया। नाजिया वहीं किचन में बेजान पड़ी रही। उसमें अब रोने की ताकत नहीं थी, बस वो जिंदा लाश थी। काफी समय तक किचन में पड़ी रहने के बाद नाजिया आराम से उठी। उसमें खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वो कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर रखे चाकू पर पड़ी। नाजिया ने चाकू उठाया। कुछ पल सोचा, उसकी आंखों से आंसू निकल गए और सोचते सोचते उसने अपने हाथ की नस काट ली। नस काटते ही उसके हाथ से खून की धार बहने लगी। वो दर्द से कहार गई, लेकिन उसने मुंह से एक भी चीख नहीं निकाली। नाजिया फर्श पर गिर गई और थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया। जब शाम को मौलाना जुबैर शबाना के साथ घर लौटा, तब तक सब खत्म हो चुका था। उसके मरने की खबर उसके अम्मी अब्बू तक पहुंची तो नाजिया की अम्मी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अब 2 घर बर्बाद हो चुके थे। अब्दुल रहमान जमीन पर घुटने के बल बैठकर चीख चीख कर रो रहा था। उसे समझ आ चुका था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। चाहे कोई हंसे या रोए, घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी नीचे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर करें एवं